So, welcome back everyone. Today we are going to do Rule 42, which is in relation to the reversal of ITC in respect of input or input services. Now, I hope all of you understood the principles relating to section 17, mainly in that section 17.5. I have sent you the summary for 17.5 and I got certain calls also in relation to the doubts on section 17.5, and I hope now you have a clarity on it. So now let's move further to understand Rule 42. Now what is Rule 42? There are two rules basically which I think are very important practically for practical questions. So we need to pay an ample amount of patience as well as concentration to understand what are the principles, what are the mechanisms in which the reversal under Rule 42 and 43 is to be derived or is to be calculated. Now, when we started the GST, what we understood initially was that this is a common tax called goods and services tax, which would be levied on both goods as well as services. So the basic idea or a basic assumption with which we started GST was that now there is no need of segregation of what is a goods and what is a service, but we gradually, when we started studying the provisions of GST, whether it is a time of supply, whether it is about a valuation, or whether it is about the place of supply, we understood that still there is a clear-cut demarcation between what is a goods and what is a service. Because law has separate provision for goods, separate provision for services. And the principle or the provisions which are applicable to goods are not applicable to services. Principles or rules or act which is applicable to services may not be applicable to goods. And there are certain provisions which are commonly applicable to both goods as well as services. Now, why we are discussing at the time of ITC this particular point? Now understand. First, in section 16, it has been said that I would be able to avail, I means being a registered person. The registered person would be able to avail an input tax credit of all its input tax if he is using those goods or services for the business purpose. तो पहले हमें बहुत क्लियर एक बहुत बड़ी छूट जैसे दे रहे हैं, इस तरीके से हमें बोल दिया गया कि आपको आपकी सारी परचेजेस पे आईटीसी मिलेगी अगर आप परचेज किए हुए गुड्स या तो सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो तो आपको सारी आईटीसी मिलेगी. एंड देन वी नो ग्रेजुअली व्हाट हैपन स्टार्टिंग विद 16(2) एंड फर्दर मूविंग और रोमिंग थ्रू सेक्शन 17 वी अंडरस्टूड दैट the availment of ITC is not that easy. We need to understand the principle very clearly. Not just that, while you are availing an ITC, now please pay attention, this is very important as the first part of Rule 42. Whenever you are doing an availment, meaning thereby you are claiming the input tax as a credit to you. You are claiming input tax as a credit to you. So whenever you are claiming input tax as a credit to you, you need to understand that at the time of availment, you need to bifurcate such input tax credit into 3 categories. जैसे हम आउटपुट टैक्स के टाइम पे बाइफरगेट करते थे ना क्लासिफिकेशन के फॉर्म में कि ये क्या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, वैसे ही अवेलमेंट के टाइम पे आपको बाइफरगेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे 3 बाइफरगेशन रहेंगे, 2 नहीं रहेंगे, यहाँ पे
3 बाइफर्केशन रहेंगे। क्या क्या बाइफर्केशन रहेंगे एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट? आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल करते हो वो किसका है। सबसे पहले तो वो किसका है, वेदर इट इज इन रिलेशन टू इनपुट, वेदर इट इज इन रिलेशन टू इनपुट सर्विस, or whether it relates to the capital goods. Now what is the meaning of capital goods and everything, I'll come later on when we are going to do rule 43. For a time being we need to understand that कि आप किसका ITC ले रहे हो वो आपको at the time of availment segregation करना पड़ेगा. I'll put in this way that at the time of procurement itself you need to segregate that whatever you are purchasing is your input or is it your input services or is it your capital goods. आपको प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ही ये वाला सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि there are separate provisions for input, input services and capital goods. Now the best example would be rule 42. This rule 42 is applicable only in respect of ITC availment on input and input services. This is not applicable to capital goods. This is not applicable to capital goods. तो रूल 42 में हम जो कुछ भी रिवर्सल करेंगे, रूल 42 में हम जो भी रिवर्सल करेंगे वो रिवर्सल एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ इनपुट की आईटीसी पे या फिर इनपुट सर्विसेज के आईटीसी पे. आप रूल 42 से आपके कैपिटल गुड्स की आईटीसी रिवर्स नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स की आईटीसी रिवर्सल के लिए आपके पास अलग रूल है, रूल 43. आपके पास कौन सा रूल है? रूल 43. हाँ, ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट the rule 43. Before we start, that basic discussion is required. Now understand, here I need to again clarify certain more technical terms. क्या है heading पढ़ते हैं. Manner of determination of input tax credit in respect of input or input services and reversal thereof. Reversal thereof. This is very important for all of us to understand. क्या ये टर्म है? क्या यूज किया हुआ है उन्होंने टर्म? ये टर्म यूज किया हुआ है रिवर्सल देयरऑफ. मतलब रिवर्सल बेसिकली इंपॉर्टेंट इज रिवर्सल देयरऑफ. क्या होता है इसका मतलब? रिवर्सल देयरऑफ मतलब क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अब समझो, मैं आपको बोलूं कि आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो उसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने ली होगी. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. उसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने आईटीसी ली होगी तभी तो रिवर्स हो रही है. अगर आपने आईटीसी ली ही नहीं है तो रिवर्सल कहां से पॉसिबल है? सो द रिवर्सल इज अ टर्मिनोलॉजी. द रिवर्सल इज अ टर्मिनोलॉजी which is to be used only for those ITC which initially at the time of procurement, at the time of purchase, first level पे आपने ITC कुछ ले ली थी और बाद में आप कुछ कैलकुलेशन करके, बाद में आप कुछ वर्किंग करके आप डिराइव करोगे कि आपने जो क्रेडिट ले ली है उसमें से आप कितनी क्रेडिट रिवर्स करोगे. आपने जो क्रेडिट ले ली है उसमें से आप कितनी क्रेडिट रिवर्स करोगे. सो देयर इज अ बकेट ऑफ आईटीसी. आई एम पुटिंग इन दिस वे, देयर इज अ बकेट ऑफ आईटीसी. और वो बकेट ऑफ आईटीसी में हम एक मग जितना, एक ग्लास जितना, एक बोतल जितना, आप समझ लो आईटीसी क्या है. एक पूरा पानी का जैसे बकेट भरा हुआ है ना, वही हमारी आईटीसी है. और एक बार हमने पानी पूरा ले लिया, पूरा बकेट भर के, तो भी रिवर्सल क्या होता है कि ये जो पानी आपने पूरा बकेट भर के लिया हुआ है उसमें से आप एक बोतल, एक मग, एक जग निकालोगे ये बोतल में से. मतलब एक बार ये जो आपके बकेट में गया पानी वो आपने आईटीसी ले ली, उसके बाद लेने के बाद निकालने की प्रोसेस जो है उसे रिवर्सल कहते हैं. सो अगर आपने आईटीसी ली ही नहीं है तो रिवर्सल का क्वेश्चन आता ही नहीं है. पहली बात.
बहुत लॉजिकली और बहुत शांति से जाऊंगा, बिकॉज ये प्रिंसिपल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर डे टू डे लाइफ एज वेल एज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करते हैं आईटीसी रिवर्सल का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईटीसी रिवर्सल का। सो आईटीसी रिवर्सल is possible only of those input tax. ITC reversal is possible only of those input or input services कि आपने पहले ITC ली थी। अगर आपने ITC ली ही नहीं थी पहले तो रिवर्सल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो रिवर्सल का क्वेश्चन नहीं आता है। यही बात है जो समझने में बहुत बार दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये ध्यान से सुनना, मैंने जो क्या बोला ना उसको, अगर ये लास्ट 5 मिनट वाला जो मैंने टॉपिक बोला ना उसको अगर 2-3 बार सुनने पड़े तो 2-3 बार सुनना, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना ये मैंने जो क्या बोला। सो हाउ इट मेक अ डिफरेंस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी से पहले की टर्मिनोलॉजी है हमारी इनपुट टैक्स की टर्मिनोलॉजी, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर ऑफ आईटीसी में ही ये चीज हमने डिस्कस की थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बनने से पहले जो होता है वो होता है इनपुट टैक्स। वो इनपुट टैक्स क्या होता है, जो कुछ भी टैक्स आपने पे किया आपकी प्रोक्योरमेंट पे, जो कुछ भी टैक्स आपने पे किया आपकी प्रोक्योरमेंट पे, उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो कि बनेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ सर्टेन कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड, तो वो बन पाएगा इनपुट टैक्स। अभी ध्यान से सुनो कि जितना भी इनपुट टैक्स है उसमें 2 ही तो चीजें हो सकती है, या तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा या तो नहीं बनेगा। 2 ही तो पॉसिबल होता है ना इनपुट टैक्स का, कि इनपुट टैक्स will get converted into input tax credit or it may not get converted into an input tax credit. So if some input tax, meaning thereby the tax which I have paid on my purchases, the tax which I have paid on my purchases, अगर वो क्रेडिट नहीं बन पाता है, मतलब अगर मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले पाता हूं तो क्या होगा, वो मेरा खर्चा हो जाएगा। सो मैं क्रेडिट ले ही नहीं पाया हूं, अवेल ही नहीं कर पाया हूं। जबकि दूसरे केस में क्या आएगा कि आप क्रेडिट ले लोगे तो वो आपका खर्चा नहीं है, और ये आईटीसी आप फिर फ्यूचर यूज करोगे उसका बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अगर हम देखने जाए तो ये ही 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको क्रेडिट मिलेगी या तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब या तो इनपुट टैक्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनपुट टैक्स क्रेडिट, या तो इनपुट टैक्स विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्सपेंस। ये ही 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये नया रूल 42 में तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनो। अभी जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने इनपुट टैक्स पे किया, जो आपने इनपुट टैक्स पे किया उसकी पहले आपको आईटीसी दी, उसकी पहले आपको आईटीसी दी, और वो आईटीसी देने के बाद आपसे कुछ रिवर्सल करवाया, तो जो बाकी की रह गई वो आपकी आईटीसी हुई, विच यू कैन अवेल। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज का इनपुट टैक्स पे किया, उसकी आपको आईटीसी भी दी गई, आपने 1000 की आईटीसी भी अवेल कर ली, आपने 1000 की आईटीसी भी अवेल कर ली, और वो 1000 की आईटीसी अवेल करने के बाद 1000 की आईटीसी अवेल करने के बाद आपसे कुछ रिवर्सल करवाया, ठीक है, वो हो रहा है यहां पे रूल 42 में। सो अगर 1000 की आईटीसी थी उसमें से आपसे 400 रिवर्स करवाए तो आपका नेट आईटीसी अवेलमेंट हो गया 600।
तो हम वही सोचने का ट्राई करेंगे कि ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि पहले आपको आईटीसी दे फिर रिवर्स करवाए। अगर उनको मना करना था तो पहले ही मना कर देते कि आप इसके आईटीसी ना लो, या फिर आप इसके आईटीसी ले लो, ऐसा बोल देते। ये लेने के बाद रिवर्सल करवाने का क्या मतलब है, और कब ये पॉसिबल हो सकता है? और वही चीज हमें यहां पे ध्यान से सुननी है जो मैं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्टिल गोइंग इनटू द वर्डिक्स और द वर्ड्स और द बैर एक्ट। अभी भी मैं एक्सप्लेनेशन मोड में ही हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द स्टोरी which you people can understand in more better way. So please pay attention to what I am saying. ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि आपको आईटीसी मिले और उसके बाद रिवर्सल करवाए? सो अगर हम ब्रॉड पिक्चर में बात करें, पहले से एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, इंसेप्शन से बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है और रिवर्सल भी कैसे हो सकता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल केसेस सो फार एज आईटीसी अवेलमेंट इज कंसर्न। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी आएगी, सबसे पहला इवेंट। सबसे पहला इवेंट क्या रहेगा? सबसे पहला इवेंट रहेगा कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब अगर आप अप्रैल महीने की बात कर रहे हो तो आप 30th अप्रैल को डे क्लोज करने के बाद आप 30th अप्रैल को बैठोगे और कैलकुलेट करोगे। हम आईटीसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो आईटीसी की बात करेंगे कि आप 30th अप्रैल को बैठोगे और 30th अप्रैल को बैठ के आप कैलकुलेशन करोगे क्या कि हमने अप्रैल मंथ में टोटल कितनी परचेजेस की है और वो परचेजेस पे हमने कितना इनपुट टैक्स पे किया है। ये सबसे पहला हमारी चीज होगी, सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन होगा कि हमने टोटल कितना इनपुट टैक्स पे किया है हमारे परचेजेस पे। सो 30 अप्रैल को बैठ के हम सिर्फ यही फाइंड करेंगे कि हमने पूरे महीने में टोटल कितना इनपुट टैक्स पे किया है। यहां पे जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। मैंने टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है इनपुट टैक्स, एंड वी नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर पहला लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको ये चीज पता ही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो हम पहला काम हमने क्या किया, 30th अप्रैल को इवनिंग में बैठ के हमने कैलकुलेट किया कि हमने हमारे परचेजेस पे टोटल कितना इनपुट टैक्स पे किया है। अभी जितना भी इनपुट टैक्स पे किया है वो सारा, मतलब वो टैक्स हो सकता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ भी हो सकता है। जितना भी हमने इनपुट टैक्स पे किया है वो सारा हमें पता है कि क्या नहीं बन पाएगा, वो पूरे का पूरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बन पाएगा, पूरे का पूरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसकी हमें आईटीसी नहीं मिलती है। भले ही मैंने मेरे परचेजेस पे टैक्स पे किया हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे मुझे आईटीसी नहीं मिलती है, हमें पता है ये। सो हमने 30 अप्रैल को एक बार हमारा परचेज रजिस्टर ओपन किया और परचेज रजिस्टर ओपन करने के बाद हमने देख लिया कि ये मंथ में हमने टोटल कितना परचेज किया है, ये मंथ में हमने टोटल कितना परचेज किया है और वो परचेज पे कितना टैक्स पे किया है, वो हमने निकाला। अभी उसमें से पहले हम क्या निकालेंगे, कुछ चीजों निकालते जाएंगे ना, तो बाकी जो बचेगा वो बन पाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहली चीज हम निकालेंगे कि भाई अप्रैल महीने में जो हमने परचेज किया है उसमें से पहले तो वो वाले गुड्स या वो वाले सर्विसेज निकालो कि जो हमने बिजनेस के लिए यूज नहीं की है, जो हमने बिजनेस के लिए यूज नहीं की है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनपुट या इनपुट सर्विसेज है, अगर मैंने बिजनेस के लिए यूज नहीं की है, अगर मैंने उसे बिजनेस के लिए यूज नहीं की है तो उसमें से तो उसकी आईटीसी मुझे नहीं मिल पाएगी। तो जितना भी मेरा इनपुट टैक्स है उसमें से ऐसे वाला इनपुट टैक्स निकालो कि जो मैंने पे किया है वो वाले इनपुट पे या इनपुट सर्विसेज पे कि जिसका मैंने यूज बिजनेस के लिए नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसकी आईटीसी मिलेगी ही नहीं। ये इनपुट टैक्स कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन ही नहीं पाएगा। सो पहला तो इसमें से ये हट गया। दूसरा क्या हटेगा कि अभी हमने जितना भी परचेजेस किया है, अभी हमने जितना भी परचेजेस किया है उसमें से वो परचेज निकालो,
वो परचेज हो सकता है किसका, इनपुट का भी हो सकता है, इनपुट सर्विस का भी हो सकता है। तो अभी मैं सिर्फ यूज करूंगा टर्म परचेज का, और जब मैं टर्म परचेज यूज करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि परचेज ऑफ ईदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो आप अब ये वाला परचेज निकालो, हाँ आप वो वाला परचेज निकालो, वो वाले गुड्स या सर्विसेज जो हमने परचेज की है वो निकालो जो कि यूज हुए हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विसेज। मतलब आप वो वाले रॉ मटेरियल या वो वाली सर्विसेज निकालो आपकी परचेज की हुई, जो आपने यूज की है फॉर फर्दर सप्लाई, बट वो फर्दर सप्लाई आपका क्या था, एग्जम्प्ट सप्लाई था। वो फर्दर सप्लाई आपका क्या था, वो फर्दर सप्लाई आपका एग्जम्प्ट सप्लाई था। वो वाला निकालो। आप जैसे ही वो वाला निकालोगे तो आपको पता है कि उसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ विच सेज दैट if you are using any input or any input services exclusively for the purpose of exempt supply, तो आपको ITC नहीं मिलती है। तो हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, हम वो वाले इनपुट या वो वाली सर्विसेज निकाल रहे हैं, इनपुट सर्विस निकाल रहे हैं जो हमने यूज की है ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एन एग्जम्प्ट सप्लाई। क्योंकि इसकी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी तो वो भी निकाल दिया। पहले निकाला था वो वाले इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो कि बिजनेस के लिए यूज नहीं हुए, उसके बाद हमने निकाला क्या, वो वाले इनपुट सर्विसेज और इनपुट जो कि यूज हुए हैं फॉर फर्दर एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिव फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई, इसकी भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी तो इसको भी निकाल दो। तीसरा हम क्या निकालेंगे कि वो वाले इनपुट या इनपुट सर्विसेज निकालो जो भले ही बिजनेस के लिए यूज हुए हों, वो भले ही टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुए हों, लेकिन ये कौन से हैं, ये वो वाले हैं जो कि कवर होते हैं सेक्शन 17(5) में, जो कि कवर होते हैं कहां पे, 17(5) में। क्यों? क्योंकि 17(5) में भी नेगेटिव लिस्ट बोला हुआ है जिसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सो यहां से ये भी निकाल दो। सो हमने जो टोटल परचेज किया था इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज का, हमने जो टोटल परचेज किया था इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, उसके ऊपर जो हमने इनपुट टैक्स पे किया था उसमें से हमने 3 चीजें निकाली। पहला जो हमने निकाला वो क्या था, इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस, उसको निकाल दिया बिकॉज उस पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर हमने निकाला वो वाले इनपुट या फिर सर्विसेज जो कि हमने यूज किए हैं फॉर एग्जाम सप्लाई, वो वाला निकाल दिया बिकॉज इसकी भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। तीसरा हम क्या निकालेंगे कि वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज निकालो जो कि कवर होते हैं 17(5) में, क्योंकि अगर वो कवर होते हैं 17(5) में तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हम वो वाले निकालेंगे जो हम कवर होते हैं 17(5) में, जो कि कवर होते हैं 17(5) में। ये निकाल दिया ना 3 चीजें, तो जो बाकी रहेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि अब वही चीज बची है जिसकी हम क्रेडिट ले सकते हैं, वही चीज बची है जिसकी हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आती है, ये जो अमाउंट आती है उसकी हमें आईटीसी अवेल करने का राइट है। ये जो अमाउंट आती है ये अमाउंट होगी क्रेडिट आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में। आई होप यू आर गेटिंग। लेकिन यहां पे एक और चीज जो है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। क्या समझना है यहां पे, हाइब्रिड। देयर आर सर्टेन इनपुट, देयर आर सर्टेन इनपुट सर्विसेज विच आर हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड मीन्स आपने परचेज किए कुछ गुड्स, उसमें से आपको परचेज करने के टाइम पे या फिर क्रेडिट अवेल करने के टाइम पे पता ही नहीं है कि आप इसको किस लिए यूज करोगे, आप इसको टैक्सेबल के लिए यूज करोगे या आप इसको एग्जाम के लिए यूज करोगे। आपको एट द टाइम ऑफ परचेज आपको पता ही नहीं है आप इसको किसके लिए यूज करोगे। सो ये होता है क्या, बिकॉज दिस आर द गुड्स और सर्विसेज विच आर कॉमनली यूज, दिस आर द गुड्स और सर्विसेज विच आर कॉमनली यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई। कॉमन यूज है इसका। मतलब आप सोच लो, एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना है तो
कि आप कॉपर का केबल खरीद रहे हो जिस पे आपने कुछ जीएसटी पे किया है, उसकी आपने आईटीसी अवेल की। ये कॉपर का केबल यूज करके आप दो टाइप के फैन बनाते हो। एक ऐसा फैन बनाते हो जो कि टैक्सेबल है, एक ऐसा फैन बनाते हो जो कि टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। आप ऐसा फैन बनाते हो जो कि एक एग्जम्प्ट है, एक दूसरा एक मोटर में यूज करते हो जो कि टैक्सेबल है। फैन भी बनाते हो आप, मोटर भी बनाते हो, दोनों में एज अ कॉइल में ये यूज होता है। तो आपने जब केबल खरीदा था तो उसमें से कुछ केबल यूज होगा टैक्सेबल के लिए, कुछ यूज होगा एग्जाम के लिए। तो एट द टाइम ऑफ परचेज तो आपको पता ही नहीं है ना कि कितना यूज होगा टैक्सेबल के लिए, कितना यूज होगा एग्जाम के लिए, वो आपको एट द टाइम ऑफ परचेज पता ही नहीं है। तो यहां पे तो ये वाले गुड्स कॉमनली यूज होते हैं टैक्सेबल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। और रूल तो क्या है कि आपको उसी की आईटीसी मिलेगी जो कि एक्सक्लूसिवली यूज होते हैं टैक्सेबल के लिए। अगर आप उसको यूज करते हो एग्जाम पर्पस के लिए तो आपको आईटीसी नहीं मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे जो यूज होते हैं वो तो क्या यूज होते हैं, यहाँ पे तो जो यूज होते हैं वो तो कॉमन यूज हो गया, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम दोनों के लिए यूज होने वाला है ये गुड्स। और ऐसा सेम चीज हो सकता है सर्विस के केस में भी कि देयर आर सर्टेन सर्विसेज व्हिच आर कॉमनली यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम। जैसे कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कराते हो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से और आपका प्रोडक्ट एग्जाम भी है और टैक्सेबल भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए सर्विस आपको दी है। ही हैज गिवन यू द सर्विस कॉमनली फॉर बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्ड गुड्स। ही हैज गिवन कॉमन सर्विसेज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्ड गुड्स। ठीक है, तो ये चीज का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो उसका यूज क्या है। अगर उसका यूज टैक्सेबल है, अगर उसका यूज टैक्सेबल है तो आप आईटीसी ले सकते हो। अगर उसका यूज एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट है तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो। अगर उसका कॉमन यूज है तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलती है। और यही बात आती है अपने रूल 42 की, और यहीं पे बात आती है रूल 42 की। रूल 42 वही बोल रहा है कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको किस तरीके से मिलेगी। रूल 42 प्रोपोर्शनेट अवेलमेंट के बारे में ही है पूरा। सो अगर आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेट देनी है, अगर आपको आईटीसी हमें प्रोपोर्शनेट देनी है तो आपको पहले पूरी आईटीसी अवेल करनी पड़ेगी। आपको पहले पूरी आईटीसी अवेल करनी पड़ेगी और पूरी आईटीसी अवेल करने के बाद बाद में रिवर्सल होगा। ठीक है, तो वही चीज का हमें अच्छे से यहां पे ध्यान देना है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो वापस से हम थोड़ा इसको ना अलग तरीके से समझ लेते हैं। मैंने एक एक्सेल सीट बनाई है जहां पे मैं आपको अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस तरीके से आईटीसी के अलग अलग टाइप क्या हो सकती है और उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल सीट। एवरीवन, आई होप यू कैन सी दिस। जस्ट अ सेकंड, पूरा दिखे? हाँ, नाउ आई होप यू वुड बी एबल टू सी दिस। यू कैन सी दिस नाउ। क्या हमें करना है यहां पे अलग अलग मैंने कैटेगरी करके रखी हुई है। यहां पे हमने अलग अलग कैटेगरी करके रखी हुई है। क्या है? पहला, इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आपने बिजनेस के लिए इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज किए हैं तो क्या है, आपको फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल। हाँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू यूज मतलब आपने किसके लिए यूज किया है उसको, टैक्सेबल के लिए या एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम के लिए यूज किया है, भले आपका एग्जाम का बिजनेस हो तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी, या फिर अगर आपने यूज किया है 17(5) के लिए तो भी आपको आईटीसी उसकी नहीं मिलेगी। लेकिन पहला क्या है कि एक बार आपको आईटीसी बिजनेस के लिए यूज किया है तो पहला हमारा पॉजिटिव हो गया कि ठीक है बिजनेस के लिए यूज किया है। फिर दूसरा टेस्ट आता है क्या कि बिजनेस हम किसका कर रहे हैं, एग्जाम का कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर बिजनेस हम एग्जाम का कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगी। या फिर ये जो हमने प्रोक्योर किया इनपुट या इनपुट सर्विसेज, इज इट गेटिंग कवर्ड अंडर
17.5? If answer is yes, then also answer ITC is not available to you. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने subject to करके लिखा हुआ है that input और input services used exclusively for business purpose. तो आपको ITC मिल जाएगी, लेकिन again subject to use. subject to use मतलब क्या कि आप इसको किसके लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए या एग्जाम के लिए. अगर एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगी. अगर 17.5 वाले गुड्स या सर्विसेज हैं तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. फाइन. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस. तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है. देयर इज नो आईटीसी अवेलेबल इन दिस केसेस. देन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज कॉमनली फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस. तो यहां पे आपको क्या है, यहां पे आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलती है, क्योंकि यहां पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यहां पे रूल 42 में आएगा वो कैलकुलेशन. कैसे करना है कैलकुलेशन उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन हमें ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि रूल 42 में हम करने क्या वाले हैं. व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ रूल 42. तो रूल 42 में ये वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी यहां पे मिलेगी. अगर आप इनपुट और इनपुट सर्विस का यूज करते हो, कुछ यूज करते हो बिजनेस के लिए, कुछ पर्सनल के लिए भी अगर आप यूज करते हो, तो यहां पे आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी. वैसे ही आगे हम जाते हैं. इनपुट और इनपुट सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस, तो आपको फुल आईटीसी मिलेगी. लेकिन अगेन यहां पे सब्जेक्ट टू यूज नहीं लिखा है, यहां पे मैंने सिर्फ लिखा है क्या, सब्जेक्ट टू 17.5, क्योंकि अगर वो इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज 17.5 वाले हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. उसके बाद आता है क्या, इनपुट और इनपुट सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम पर्पस. अगर आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम पर्पस के लिए यूज किया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. और लास्ट में आता है क्या, यूज कॉमनली फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड. आपने वही वाला कॉपर का केबल है, उसमें से एक मोटर बनाई जो एग्जाम थी, फैन बनाया जो टैक्सेबल था, लेकिन वही वाला केबल यूज हुआ है, तो इस पे आईटीसी आपको ना तो पूरी मिलेगी ना तो पूरी रिवर्स करनी है. आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी. और वो प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करना है वही हमें रूल 42 में सीखना है, वही हमें सीखना है. सो यही चीज है जिसका मैं जो कब से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं कि इतने इतने प्रकार के आपके परचेसेस हो सकते हैं और इतने इतने क्वेश्चन आपको खुद को पूछने हैं एट द टाइम ऑफ परचेस कि ये भाई हम जो खरीद रहे हैं वो बिजनेस के लिए है या नहीं है. सबसे पहला तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन वो हो गया. अगर नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगी. अगर है तो आप देख लो आगे क्या यूज करने वाले हो. अगर कॉमन है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी. आप पूरी एक बार ले लो, सुनो, पूरी एक बार ले लो फिर रिवर्स करो, तो वही रिवर्सल है जो कि 42 में होता है. यहां पे दूसरे वाले पॉइंट में यहां पे तो आपको आईटीसी मिलती ही नहीं है. तो दैट इनपुट टैक्स नेवर बिकम एन इनपुट टैक्स क्रेडिट. लेकिन प्रोपोर्शनेट में तो पूरा एक बार आपको दे देंगे, उसके बाद बाय वे ऑफ रूल 42 रिवर्स करेंगे. तो वही रिवर्सल होता है रूल 42 में. वैसे ही यहां पे टैक्सेबल के लिए अगर आपने परचेज किया तो आप आईटीसी ले लो, लेकिन देख लो 17.5 में तो कवर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर 17.5 में कवर हुआ तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. वैसे ही अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो, यहां पे एक्सक्लूसिवली वर्ड मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो ही आईटीसी मिलेगी. एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो तो ही आईटीसी नहीं मिलेगी. सो दैट इनपुट टैक्स नेवर बिकम इनपुट टैक्स क्रेडिट. लेकिन आप प्रोपोर्शनेट अगर आप कॉमन यूज कर रहे हो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम का, तो एक बार पूरा आईटीसी ले लो, बाद में रिवर्स करो. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द mechanism of rule 42, this is something which requires a clear attention. This is something which requires a clear attention to all of us. So let's understand what it says. अब आते हैं हम रूल 42 में. रूल 42 क्या बोल रहा है? रूल 42 सब रूल 1. What this rule 42 sub rule 1 is saying? Input tax credit in respect of input और input services. यहां पे कहीं पे भी कैपिटल गुड्स का यूज नहीं हुआ है. Input tax credit in respect of inputs or input services which attract the provision of subsection 1 और subsection 2 of section 17. तो आपने पढ़ा हुआ है 17(1) और 2 में क्या कवर होता था? यही तो कवर होता था ना, बीइंग यूज फॉर बिजनेस पर्पस, बीइंग यूज फॉर टैक्सेबल पर्पस. तो यही चीज तो 17(1) 17(2) में कवर होती थी. बीइंग रूल 42 में कब आएगा? बीइंग
partly used for the purpose of business and partly used for other purpose. तो अगर आप पार्टली यूज करते हो उसको बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली यूज करते हो अदर पर्पस के लिए, या फिर उसको पार्टली यूज करते हो टैक्सेबल पर्पस के लिए और पार्टली यूज करते हो आप एग्जाम पर्पस के लिए, तो ही आप रूल 42 में कवर होते हो. और आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई. सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. और आपको उसके साथ ये भी समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई. एग्जाम सप्लाई क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल अगर देते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग टाइप के सप्लाई देंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से एग्जाम कौन सा है. तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड व्हाट एंड इट शुड नॉट इंक्लूड व्हाट, वो भी ध्यान से दिखना. ज्यादा एक्सप्लेनेशन है. 17.3 इज अ एक्सटेंडेड वर्जन के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई, व्हाट इज फर्दर इंक्लूडेड इन एग्जाम सप्लाई. 17.3 में भी है और रूल 42 में भी आगे आएगा कि व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड. तो आगे हम जैसे पढ़ेंगे आपको आएगा ये. सो बेसिकली आपका रूल 42 एप्लीकेबल कब होता है? आपको रूल 42 एप्लीकेबल कब होता है? आपको रूल 42 एप्लीकेबल तभी होता है जब आप इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज यूज करते हो पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर अदर एंड पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई. तो ही आपको रूल 42 एप्लीकेबल होता है. करना क्या है, मैकेनिज्म क्या है, अब चिंता मत करो, क्योंकि मैकेनिज्म वही है जो हम कब से भी डिस्कस कर रहे हैं, वही इसका मैकेनिज्म है. कैसे कैलकुलेशन करना है ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां पे ना टर्मिनोलॉजी यूज की है. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि आप सबसे पहले जैसे हमारा एग्जांपल में था ना कि 30 अप्रैल को बैठो और 30 अप्रैल को बैठ के निकालो आपने कितना इनपुट टैक्स पे किया है. तो वही हो रहा है. स्टेप ए, टोटल इनपुट टैक्स. हमें ये क्या करना है, पहला ये स्टेप करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल इनपुट टैक्स. यहां पे देखो, यहां पे वर्ड यूज किया है इनपुट टैक्स, यहां पे वर्ड यूज नहीं किया इनपुट टैक्स क्रेडिट. कौन सा वर्ड यूज किया है? इनपुट टैक्स. वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल, मतलब क्या, सारे इनवॉइसेस का मिला के, सारे इनवॉइसेस का मिला के टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड. मतलब एक महीना, अब जो पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो वो. सो आई विल पुट इट अ मंथ, आई विल पुट इट अ मंथ. उसको हम बोलेंगे क्या? टी. उसको हम बोलेंगे क्या? टी. सो पहला स्टेप हमारा क्या था? हमने 30 अप्रैल को जो बैठ के किया था ना, वही मेरा पहला स्टेप है कि 30 अप्रैल को हम बैठ के पहले निकालेंगे हमने टोटल इनपुट टैक्स कितना पे किया है. वो इनपुट टैक्स क्या हो सकता है? CGST, SGST, IGST, और ये सारा कैलकुलेशन रूल 42 का आपको टैक्स वाइज करना है. मतलब सेपरेट कैलकुलेशन फॉर CGST, सेपरेट कैलकुलेशन फॉर SGST, सेपरेट कैलकुलेशन फॉर IGST, और इफ इट हैविंग अ UTGST तो सेपरेट कैलकुलेशन फॉर UTGST. तो ये सारे कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करने हैं. तो आप पहले क्या करोगे? टोटल इनपुट टैक्स निकालोगे जो कि आपने पे किए हैं आपके इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, दैट इज अ मंथ, और उसको हम नाम देंगे टी. अब क्या करेंगे? ये टी में से ना हटाते जाएंगे. और ये वर्ड क्या था? इनपुट टैक्स था, क्रेडिट नहीं थी, बिकॉज हमें आपको अभी यहां पे क्रेडिट आपको अभी तक मिली नहीं है. फिर आता है स्टेप बी, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स. यहां पे भी क्या वर्ड है? अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी, आउट ऑफ टी attributable to input and input services which are intended to be used exclusively for the purpose other than business, which is to be denoted as T1. क्यों? बिकॉज इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी. तो वही मैकेनिज्म ये लोग यूज कर रहे हैं कि पहले आप पूरा बकेट ले लो और बकेट पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो और इनपुट टैक्स पूरा आप पहले ले लो. आपका परचेजेस कितना था, वो परचेजेस पे आपने कितना इनपुट टैक्स पे किया है, उसमें से पहले निकाल लो ना कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एलिजिबल नहीं है. तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि कौन कौन सा है जो एलिजिबल है. सो पहला हमने T1 जो निकाला, तो T1 क्या था? हमने आउट ऑफ टी हमने निकाला वो वाला इनपुट टैक्स जो कि हमने पे किया है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे, जो कि हमने पे किया है इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज पे, जो हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस, और उसको हम नाम देंगे T1. आप आगे देखते जाओ ना कि हमें पता चलेगा कि ये
टी में से माइनस ही होगा T1, ठीक है। तो लेकिन पहले ये अमाउंट तो निकालना है, तो ये हमने अमाउंट निकाली। हाँ, फिर आते हैं आगे वाले स्टेप पे। तो हमारा आगे स्टेप क्या था, हमने भी पहले यही किया था कि हमने पहले निकाला था कि कौन से ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विस है जो बिजनेस के लिए यूज नहीं थे, उसको पहले निकाला, बिकॉज हमें उसके आईटीसी नहीं मिलेगी। वो उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि वो वाले इनपुट या इनपुट सर्विसेज निकालो जो आप यूज करने वाले हो एग्जाम के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम के लिए। वही चीज होगी यहाँ पे स्टेप नंबर सी में। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट एन अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स, वी नीड टू फाइंड आउट amount of input tax again out of T attributable to input or input services which are intended to be used exclusively for affecting an exempt supply to be denoted as T2। क्यों, वापिस से वही वाला रीजन, बिकॉज यहां पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज पे जो ध्यान देना है वो है ये जो तीन वर्ड यूज हुए हैं, तीनों वर्ड है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड यूज नहीं हुए हैं, बिकॉज ये आपके एलिजिबल ही नहीं है क्रेडिट बनने के, तो वो वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, वो लोग पागल नहीं है ना, इसलिए पहले सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं। वो क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब तो सिंपल है, जो कुछ भी आपने टैक्स पे आपने पे किया आपके परचेज पे, वो सारे इनपुट टैक्स हैं, लेकिन सारे क्रेडिट नहीं बन पाते। सो क्रेडिट तो क्या बन पाएगा, जो कि एलिजिबल होगा। तो क्या एलिजिबल होगा, आगे आते हैं। हमने हमारे एग्जांपल में तीसरा स्टेप किया था 17.5 वाला, तो वही वाला यहां पे आएगा स्टेप डी। वापिस से क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज on which credit is not available under subsection 5 of section 17 that is denoted as T3। क्यों, बिकॉज इसकी भी अवेलमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, रिवर्सल नहीं करना है, इसकी अवेलमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। आप इसकी क्रेडिट ले ही नहीं सकते हो, आप अवेल ही नहीं कर सकते हो। हाँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तीन चीजें हमने निकाली। टोटल जो हमारा इनपुट टैक्स था वो था टी, उसमें से हमने निकाला T1, T2 एंड T3। T1 था हमारा वो वाले इनपुट या फिर सर्विसेज जो कि हमने अदर देन बिजनेस के लिए यूज किए हैं। T2 था हमारा एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम पर्पस, वो वाले हमने निकाल दिए इसमें से। और T3 था हमारा क्या, 17.5 वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज। ये तीनों हमने निकाले। वो कहां पे आया, दैट इज स्टेप ई। क्या किया हमने, C1 फाइंड किया। C1 इज व्हाट, T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इन तीनों का टोटल हमने T से निकाला तो आया C1। C1 क्या है, बेसिकली आपकी ITC है, आपकी ITC है। कौन बोला ITC है, मैं नहीं बोल रहा, रूल बोल रहा है। ई देखो पढ़ो, अब यहां पे वर्ड देखो कैसे चेंज हुआ है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। समझ में आया, यहां पे वर्ड पूरा चेंज हो गया। यहां पे इनपुट टैक्स था, यहां पे वर्ड क्या आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डिनोटेड एज अ C1। अब जो रिवर्सल होगा वो ये C1 में से होगा। ये BCD था वो रिवर्सल नहीं था, वो तो था कि आप ITC ले ही नहीं सकते हो। रिवर्सल का क्वेश्चन तो तब आता है जब आपने पहले ITC ले ली हो, बाद में आप रिवर्स करते हो, तो दैट इज समथिंग विच इज अबाउट रिवर्सल। यहाँ पे रिवर्सल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको B, C और D में जो था वो तो आपको ITC कभी भी एलिजिबल थी ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते थे। तो अभी क्या किया उन्होंने कि भाई आप टोटल T में से ये तीन चीजें अगर निकाल देते हो, T1, T2 एंड T3, और जो बाकी बचेगा दैट इज समथिंग नोन एज अ C1, आप वो अमाउंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल सकते हो और ये अमाउंट आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन सकती है। ये अमाउंट आपकी बन सकती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आगे जितने भी रिवर्सल होंगे वो रिवर्सल होंगे ये C1 में से, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से अगर आपने सुना हो ना तो आपको समझ में आएगा, वरना डिफिकल्टी आएगी अंडरस्टैंड करने में, 2-3 बार सुनना पड़ेगा। ये C1 क्या है, C1 है हमारे टोटल परचेजेस में से, ध्यान से सुना, हमारे टोटल परचेजेस में से 3 कैटेगरी के इनएलिजिबल परचेजेस थे जिसके में ITC नहीं मिलती थी, वो हमने निकाल दिए।
तो जो लेफ्ट आउट हुआ वो क्या हुआ, जिसकी हमें आईटीसी मिलेगी। लेकिन यहां पे भी एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहां पे भी दो टाइप की आईटीसी हो सकती है, दो टाइप के आपके इनपुट या इनपुट सर्विसेज हो सकते हैं। एक हो सकता है ऐसा जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुए और टैक्सेबल पर्पस के लिए, दूसरे हो सकते हैं वो वाले जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुए हो एग्जाम पर्पस के लिए, सॉरी एक्सक्लूसिवली नहीं, कॉमनली यूज हुए हो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम पर्पस के लिए। आपका जो C1 है उसमें दो टाइप के इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज हो सकते हैं। पहला हो सकता है वो वाले इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो कि आपने एक्सक्लूसिवली यूज किया टैक्सेबल पर्पस के लिए, और वो वाले इनपुट और इनपुट सर्विस भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे C1 में जो कि आपने कॉमनली यूज किए हैं इनपुट, कॉमनली यूज किए हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई के लिए। जो रिवर्सल होता है, जो रिवर्सल होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है कॉमन पे, मतलब वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज विच यू हैव यूज कॉमनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिवर्सल होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिवर्सल होता है जो इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज आपने यूज किए हो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एक्सक्लूसिवली आपने यूज किए हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए, उस पे आईटीसी रिवर्स करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं हुए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब हम C1 में से हम C1 में से अब क्या इसीलिए पॉइंट F पे डिडक्ट करेंगे, हम C1 में से डिडक्ट करेंगे। अब देखो वर्ड सारे अभी क्रेडिट वर्ड ही आएंगे। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू input or input services intended to be used exclusively for taxable supply other than exempt। समझ रहे हो क्यों माइनस किया? आप सोचोगे यार ऊपर तो सर हमने सिर्फ एग्जाम माइनस किए हैं, यहाँ पे तो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल उसको भी माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें इस पे रिवर्सल नहीं करना है, रिवर्सल हमें सिर्फ वो वाली आईटीसी पे करना है जो कि कॉमनली यूज हुए हैं एग्जम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल के लिए। वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल, तो उस पे तो माइनस करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि उस पे तो कुछ रिवर्सल आता ही नहीं है, उस पे तो आपको फुल आईटीसी मिलेगी। हाँ, क्योंकि रिवर्सल किस पे होता है? रिवर्सल सिर्फ उसी पे होता है जो कि आपने कॉमनली यूज किए हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम पर्पस के लिए। तो इसीलिए हमने पॉइंट F पे वो वाली आईटीसी को फॉर कैलकुलेशन पर्पस डिडक्ट किया है। ये आईटीसी रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इसको यहां पे डिडक्ट किया है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट this C2. What is a C2? C2 is equal to C1 minus T4. What is a C1 minus T4? That is a C2. तो भी C2 क्या है? Input tax credit left after attribution of ITC credit under clause H shall be called common credit. Common credit मतलब क्या? Common credit which has been used for taxable as well as exempt supply. Which has been used for taxable as well as exempt supply. ठीक है, आपके पास ये C2 आ गया, मतलब क्या है कि ये वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज होंगे। यहाँ पे C2 में कौन सी आईटीसी होगी? ये इस पे आईटीसी होगी वो वाले गुड्स या फिर सर्विसेज पे, वो वाले इनपुट या फिर सर्विसेज पे जो इनपुट या फिर सर्विसेज आपने कॉमनली यूज की है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम के लिए। किसी के लिए भी एक्सक्लूसिव नहीं था, बिकॉज अगर एक्सक्लूसिव होता तो या तो आईटीसी मिलती ही नहीं या तो पूरी मिल जाती। तो यहां पे जो है वो वही वाले हैं जो कि आपने कॉमनली यूज किए हैं फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम के लिए। तो अभी यहां पे रिवर्सल कैसे करना है? D1 इज अ रिवर्सल, नेक्स्ट स्टेप I इज अ रिवर्सल। D1 में हम क्या बोलेंगे कि जो आपकी कॉमन क्रेडिट है उसको सिंपली आपके एग्जाम टर्नओवर के प्रोपोर्शनेट निकाल दो। E डिवाइड बाय F, व्हाट इज E? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, दैट इज अ मंथ। आप अगर अप्रैल महीने का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप निकालो ना कि आपकी जो कॉमन क्रेडिट आती है वो कॉमन क्रेडिट में से आपकी जो कॉमन क्रेडिट आती है वो कॉमन क्रेडिट में से आपका आपकी जो कॉमन क्रेडिट है
हाँ, उसको आप प्रोपोर्शनेट निकालो। किसका प्रोपोर्शनेट? टोटल टर्नओवर के सामने आपका एग्जाम टर्नओवर कितना है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट तो उसे बोलते हैं। सो दिस इज अ प्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। सो आपका जितना एग्जाम टर्नओवर होगा आपके टोटल टर्नओवर के सामने, आपका जितना एग्जाम टर्नओवर होगा आपके टोटल टर्नओवर के सामने, उतना रिवर्सल होगा, जिस रिवर्सल को हम बोलते हैं D1। जिस रिवर्सल को हम बोलते हैं D1। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, स्टेप्स लॉजिक थोड़ा समझ में आया कि हमने T से स्टार्ट किया। मैं क्विकली समराइज करता हूँ। हमने T से स्टार्ट किया, वो था हमारा टोटल इनपुट टैक्स जो हमने पे किया हमारे परचेजेस पे, उसमें से T1, T2, T3 को माइनस किया, अदर देन बिजनेस एक्सक्लूसिवली एग्जाम 17,500 उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिला C1, जिसकी हमें ITC एट द फर्स्ट स्टेप मिल जाएगी, जिसकी ITC आपको मिल जाएगी। उसमें से हमने माइनस किया T4 फॉर कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि इस पे कुछ रिवर्सल नहीं करना है। सो अगर मैं C1 में से T4 को माइनस करूंगा तो आएगा C2, जिसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। और वो कॉमन क्रेडिट में से हमने प्रोपोर्शनेट किया एग्जाम का अगेंस्ट टोटल। सो E इज योर एग्जाम टर्नओवर, F इज योर टोटल टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। हाँ, तो मंथ वाइज ये कैलकुलेशन करना है। सो एक चीज वापस से आप समझ लो, ये जो रिवर्सल करना है ना, आपको मंथ वाइज करना है। हर एक महीने पे बैठ के आपको निकालना है टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितना, एग्जाम सप्लाई कितना, कॉमन क्रेडिट कितनी। सो ये पूरा कैलकुलेशन आपको मंथली करना है। सो हमने सिंपली प्रोपोर्शनेट किया C2 का, कि प्रोपोर्शनेट निकालो कितना आता है एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्ट, उसे हम बोलते हैं D1। सो हमें आउट ऑफ दिस C2 ये D1 को रिवर्स करना है। बेसिकली आउट ऑफ दिस C2 हमें ये D1 को रिवर्स करना है। ठीक है, ये बीच में जो पैराग्राफ है ना, दिस इज समथिंग नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम, दिस स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो मैंने पूरे ये रूल के अंदर मैंने उसको ना रेड लाइन करके रखा हुआ है, स्ट्राइक आउट करके रखा हुआ है। तो आप भी ये चीज समझ लेना कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपका मॉड्यूल देख लिया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्लीकेबल आपको नहीं है, तो आप इसको ध्यान मत देना। अब एक काम करते हैं, बिफोर वी गोइंग फर्दर, आई वॉन्ट you to understand an example, practical example on this. So let's try to put one example, जिससे कि हमें समझ में आए कि बेसिकली कैलकुलेशन होता कैसे है। देखो, मैंने सारी टर्मिनोलॉजी यहां पे लिख के रखी है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्ट की अमाउंट भी डाल के रखी है, बिकॉज हमारी ITC इतनी हो सकती है ना। हमारी ITC क्या हो सकती है? CGST की ITC हो सकती है, SGST की हो सकती है, IGST की हो सकती है। और ये सारे T1, T2, T3, C1, T4, C2, और पूरा मैंने यहाँ पे इक्वेशन ही बना के रखा हुआ है, और ये सारी फिगर भी मैंने डाल के रखी हुई, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था T में? T क्या बिलोंग करता था? T मीन्स टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन योर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। तो हम जो अप्रैल महीने का जो एग्जांपल लिया था ना, सो फॉर एग्जांपल अप्रैल महीने में हमने टोटल जो परचेजेस किए हैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे, उस पे हमने फॉर एग्जांपल पे किया है 1 लाख का CGST, 1 लाख का SGST और 40,000 का IGST। ये अभी ITC नहीं बना है, सिर्फ हमने ये अमाउंट फाइंड किया कि इतनी अमाउंट है जो हमने हमारे परचेजेस पे की है। किसके परचेजेस पे? इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के परचेजेस पे हमने इतना टैक्स पे किया है। उसमें से सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया? हाँ, सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे? सबसे पहले हमने निकाल दिया T1। T1 क्या था? एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पज अदर देन बिजनेस। बिजनेस के लिए आपने यूज नहीं किया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो वो ये भी हाइपोथेटिकल अमाउंट है। हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल के फॉर एग्जांपल के आउट ऑफ 1,10,000 ITC ऐसी है, हाँ, या फिर 10,000 ITC वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज में जो हमने बिजनेस के लिए यूज नहीं किए। तो वैसे IGST में फॉर एग्जांपल इट इज 2,000। ये दोनों तो नॉर्मली सेम ही रहते हैं, C+S वाले तो सेम ही रहते हैं। हाँ, तो वो हमने यहां से निकाले। फिर आता है T2। T2 क्या था हमारा? कि ये वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज हैं जो हमने एक्सक्लूसिवली यूज किए थे एग्जाम के लिए, उस पर भी हमें ITC नहीं मिलता है। तो वो एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है कि 2020 और 10 कि ये वो वाले इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज पे ITC है जो कि हमने एक्सक्लूसिवली यूज किया है। एक्सक्लूसिवली हमने यूज किया है ओनली फॉर एग्जाम पर्पस। हाँ, तो ये ध्यान से सुनना ये चीज। फिर आता है क्या? 17,500 वाला डिसेबिलिटी, वो भी ITC हमें नहीं मिलेगी, तो वो भी मैंने हाइपोथेटिकल अमाउंट यहाँ पे डाल के रखी है। अब यहाँ पे जो C1 आया ना, दिस इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट विच विल बी क्रेडिटेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये ब्लू वाला C1 कैसे आया आपका? देख लो, 1 लाख में से
1 लाख में से मैंने डिडक्ट किया 10,000, 20,000 एंड 5,000. So this 65,000 will be the amount which will be credited in your electronic credit ledger. This 65,000 will be credited in your electronic credit ledger. वैसे ही मैंने SGST का कैलकुलेशन किया, वैसे मैंने IGST का किया, क्योंकि this is IGST, this is a typing mistake. वैसे ही मैंने कैलकुलेशन किया IGST का, तो आउट ऑफ 40 ये तीनों को मैंने डिडक्ट किया, तो आया C1 जिसकी मैंने ITC ली. उसके बाद क्या आया? अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट और इनपुट सर्विस विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल, दैट इज योर T4. T4 को मैंने रखा कि भाई ऐसे वाले गुड्स जो एक्सक्लूसिवली यूज हुए हो टैक्सेबल के लिए, या फिर ऐसे वाली सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली यूज हुए टैक्सेबल के लिए, उस पे जो ITC वो थी 30 और 10 की. क्यों T4 अलग कलर किया है मैंने? बिकॉज T4 वो वाला है जिसपे आपको कुछ रिवर्स करना ही नहीं है, आपको रिवर्स करना है सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्रेडिट पे. इसीलिए मैंने टोटल क्रेडिट में से कॉमन क्रेडिट कितनी, 65 में से पूरी की पूरी 65 कॉमन क्रेडिट नहीं है, 65 में से 30,000 क्रेडिट ऐसी है जो कि यूज हुए एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल के लिए. अगर उसको मैं माइनस करूंगा तो रिमेनिंग 35,000 की क्रेडिट वैसी है जो कि कॉमन यूज हुई है आपके टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई के लिए, आपके टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई के लिए. तो ये C2 है आपका कॉमन क्रेडिट, C2 है आपका ये कॉमन क्रेडिट. ठीक है, ये कॉमन क्रेडिट मिल गई. कॉमन क्रेडिट अब क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करेंगे. प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कैसे करेंगे? इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए टर्नओवर फिगर डाल के रखी हुई है, दैट इन अ पर्टिकुलर मंथ total exam supply for example is 2 lakh, total taxable supply is 4 lakh, therefore total supply is 6 lakh. तो आपको रिवर्स कितना करना है? आपको रिवर्स करना है D is a proportion to your exam supply. तो यही कैलकुलेशन है. आप देखो मैंने एरो करके रखा हुआ है किस तरीके से रिवर्सल हुआ है. 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड विद 35,000, तो आएगा आपका कितना? 11,667. मतलब क्या? आउट ऑफ 35,000 क्रेडिट विच यू हैव ऑलरेडी अवेल, बिकॉज आपने C1 में पूरा अवेल तो करके रखा है 65. सो आउट ऑफ 35 हाउ मच नाउ यू नीड टू रिवर्स इज 11,667. इतना आपको रिवर्स करना है, मतलब आपको बाकी का क्रेडिट मिलेगा, आपको बाकी का क्रेडिट मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. वैसा ही सेम कैलकुलेशन आया SGST के लिए, वही सेम प्रोपोर्शनेट हमने यूज किया है, वही सेम प्रोपोर्शनेट हमने यूज किया है IGST के लिए. ये था हमारा पार्ट ए. स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई यहाँ पे. मैं ये शीट भी आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट पूरा भेज दूंगा, और इसके एग्जाम्पल भी हैं बुक्स में. आपको इंडिविजुअली ये एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, खुद ही देखने हैं, तो आप समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा. बाय पुटिंग दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर फिर भी नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट. वापिस आते हैं अब रूल में. ये था प्रैक्टिकल सिनारियो. वापिस आ जाते हैं हम रूल में. तो यहाँ तक जो बात हुई है, यहाँ तक जो, और ये जो मैंने स्ट्राइक आउट किया हुआ है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है, आप भी खुद स्ट्राइक आउट कर देना. ये देख लेना वीडियो में कि मैंने क्या क्या स्ट्राइक आउट किया हुआ है. ये स्ट्राइक आउट किया हुआ है जो मैंने रेड लाइन वाला, वो पूरा आपको निकाल देना है. विच इज बिलोंगिंग टू कंस्ट्रक्शन, वो आपको निकाल देना है. वो वाला हमें एप्लीकेबल नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट पोर्शन वी आर नॉट डूइंग. ठीक है. देन अगर ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दैट जो महीने में आप ये कैलकुलेशन करने बैठे, बिकॉज आपको जैसे कि मैंने बोला कि हर एक महीने में आपको ये कैलकुलेशन करना है, हर एक महीने में आपको ये कैलकुलेशन करना है. तो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका टर्नओवर है ही नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका टर्नओवर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में टर्नओवर नहीं है तो आपको क्या करना है? ENF कौन सी लेनी है? कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ ENF ऑफ द लास्ट टैक्स पीरियड फॉर विच डिटेल्स ऑफ सच टर्नओवर इज अवेलेबल. तो अगर अप्रैल महीने का हम कैलकुलेशन करने बैठे हैं और अप्रैल महीने में कोई टर्नओवर हुआ ही नहीं है, सिर्फ परचेज ही हुआ है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. तो आपको क्या करना है? अप्रैल का टर्नओवर आपका नहीं अवेलेबल है, प्रोपोर्शनेट E और F अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो? तो आप आगे वाला महीना देखो, मार्च महीना देखो, मार्च में अवेलेबल नहीं है आपके डेटा, तो आप
फेब्रुवरी में जाओ, फेब्रुवरी में अवेलेबल नहीं है तो जनवरी में जाओ, ऐसा आगे जाते जाओ, आगे का टर्नओवर आप ले लो, आगे का किसी भी पीरियड में जो टर्नओवर अवेलेबल हो वो पीरियड का आप टर्नओवर ले लो। अगर रिस्पेक्टिव मंथ में जब आप कैलकुलेशन करने बैठे हो तब टर्नओवर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप आगे किसी भी मंथ का टर्नओवर ले सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। देन व्हाट इज एन एक्सप्लेनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेशन वापिस से इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज treated as exempt supply and what is not treated as an exempt supply. Understand? exempt supply क्या नहीं माना जाएगा। Explanation ये बोल रहा है कि exempt supply में क्या include नहीं होगा। The something which is covered in entry number 84 and covered in 92A of the 7th schedule of the Constitution. Understand? अगर आप वो वाले गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिसपे आप एक्साइज ड्यूटी या फिर CST पे कर रहे हो, वो कौन सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद है ना, इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। सो आप वो वाले गुड्स सप्लाई कर रहे हो कि जिसपे एक्साइज ड्यूटी और वैट और CST पे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली GST उस पे नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और वैट CST पे हो रहे हैं, तो उसे एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई एंड द टोटल टर्नओवर shall exclude the amount of any duty or tax levied under 84 and 92. So please try to understand कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। फाइन। देन व्हाट इज अ क्लॉज J? अभी क्लॉज J इज अबाउट D2। आगे हमने जो रिवर्स किया वो था D1, ऊपर जो हमने रिवर्स किया वो तो क्या था, वो रिवर्सल तो था आपका D1। व्हाट इज अ D2? सी देखो, कॉमन यूज दो टाइप के हो सकते हैं। आप वापस से एक्सेल सीट में आते हैं ना, तो कॉमन यूज हम दो टाइप के हो सकते हैं। यहां पे आओ, हाँ, कॉमन यूज दो टाइप के हो सकते हैं। एक ये वाला है कॉमन यूज, एक ये वाला है कॉमन यूज। हमने जो किया अभी D1 वाला, तो ये इसके लिए था कि पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल, पार्टली यूज फॉर एग्जाम। अब D2 है इसके लिए, D2 इज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, कि पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, पार्टली यूज फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। तो आपने कॉमन इनपुट या इनपुट सर्विस है जो पार्टली आपने यूज किया बिजनेस के लिए, पार्टली आपने यूज किया अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका रिवर्सल है जिसे हम बोलते हैं D2। तो D2 का रिवर्सल कैसे होता है, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल। D2 आपको क्या करना है, D2 shall be, so I'm reading J, the amount of credit attributable to non-business purpose if the common input and input service are used partly for business and partly for non-business purpose shall be denoted as a D2 shall be सीधा equal to 5% of C2। So ऊपर जो आपने C2 कैलकुलेट किया था, ऊपर हमने जो C2 कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ऊपर जो हमने यहाँ पे C2 कैलकुलेट किया था, वो C2 का 5% सीधा हो जाएगा आपका D2। तो आपको यहां पे ज्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं करना है कुछ, सीधा आपको 5% लेना है C2 का, और वो 5% ऑफ C2 इज गोइंग टू बिकम योर D2, गोइंग टू बिकम योर D2। सो टोटल अल्टीमेट आपके पास क्रेडिट कितना बचा, वो बात कर रहा है पॉइंट के, कि आपकी जो टोटल कॉमन क्रेडिट थी C2, उसमें से हमने एक तो D1 रिवर्स किया। D1 था क्या, पार्टली फॉर एग्जाम, पार्टली फॉर एग्जाम, जो पार्टली फॉर एग्जाम, पार्टली फॉर टैक्सेबल के लिए जो था, उसमें से एग्जाम के लिए जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाली हमने, वो वाला था D1, और D2 क्या था, प्रोपोर्शनेट टू नॉन बिजनेस पर्पस। सो कॉमन C2 में से ये दो अगर निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा C3, तो C3 इज एन अमाउंट, द रिमाइंडर ऑफ द कॉमन क्रेडिट शैल बी eligible input tax credit attributable to the purpose of business and for affecting supply other than exempt supply but including zero rated supplies and shall be denoted as C2। तो ये वो वाली क्रेडिट है जो कि आपकी बैलेंस क्रेडिट होगी अवेलमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रेडिट तो पूरी लेके ही बैठे थे। आपने ये कॉमन जो क्रेडिट थी, आपकी जो टोटल क्रेडिट थी C2, उसमें से हमने इसको हटाया, क्योंकि हम पहले C1 पूरा अवेल करके बैठे थे, क्योंकि अवेल ऑलरेडी करके बैठे थे, तो उसमें से रिवर्स करेंगे इन द नेम ऑफ D1, इन द नेम ऑफ D2। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन द सेम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे D1 वाला कैलकुलेशन हो गया। अब D2 का कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि D2 क्या होता है। D2 इज एन अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ common input and input services are used partly for business and partly for non-business purpose, which is equal to 5% of C2। तो हमारा C2 तो है ना यहाँ पे, ये रहा, उसका 5% ले लो,
1750, 1750, 1750 एंड 800. सीधा 5% ऑफ C2, इसका सीधा 5%, देखो सीधा 5%, इसका 5%